Dear students and all my dear viewers, the video what I am going to present today is on Merchant of Venice, and the scene what is to be described today is one of the most important scenes of Merchant of Venice. This is Act 3, Scene 2. Act 3, Scene 2 is important, it is significant for different points of view. So far as the link of this particular scene is concerned, in the previous part we have seen Act 2, Scene 7 and Act 2, Scene 9. In these two scenes, we have seen the casket selection. In Act 2, Scene 7, we had seen Morocco had come to choose the casket, and ultimately he had chosen the gold casket, and ultimately he failed to marry Portia. In Act 2, Scene 9, we have seen Prince of Aragon had come and he had chosen the silver casket, and he also failed to marry Portia. Particularly this scene is also related to the casket. Here Bassanio has come to choose the casket because he wants to marry Portia. He will choose the casket, and this particular scene will be finally this scene will be the final casket story for the audience. This is the third casket scene. In this particular scene, Bassanio will choose the casket, and what happens, the result we will see in the play as it advances. But so far as this scene is concerned, it gives us four types of information. The first thing what we will see, that Bassanio will choose the right casket and he will be able to marry Portia. The second thing what we will see, that is the marriage of Nerissa and Gratiano, that is also to take place here in this scene. The third thing what I am going to see here, that is the bad news, and the bad news is about the shipwreck of Antonio and his inability to pay the borrowed amount from Shylock. And the fourth thing what we will see here, that is the Bassanio's departure from Belmont to Venice to save the life of Antonio. So these are the four things through which all this scene deals. So without having any more description, I am coming to the line. So you listen the line very carefully. You just open the book, that will help you to understand the lines very clearly. And I will go from line to line, and I will describe each and every word of the line, so you will be able to understand it very clearly. This scene is very, very important for the exam also, and the exam several types of short questions are asked in the form of different types of options are given, and on the basis of those options, so students are requested that each and every question what arises in his mind should be asked. And here I will try to answer all your questions what I expect that it may arise in your mind. So now come to the line. Before starting the line, we just have the scene. And what is the scene here? This is the scene what is taking place in a room of Portia's house. And here there are different characters, and the main characters are Portia and her maidservant Nerissa are present there. Apart from that, Bassanio, Gratiano are also present there, and several attendants are there. Dear students, this particular scene is a very big scene in the play. It is more than 350 lines, and it is not possible to describe it in one class. That's why it is divided into different parts. So today this is the first part of this scene. I will describe up to line number 60 what I see, up to where I will try to describe today. And for continuation, this scene will be given to you, and you will be beneficial for the examination. Now coming to the line, yes, here Portia says,
First of all, Portia says here, I pray you, tarry. I pray you, tarry. I pray you. Who is referred to you here? You is referred to Bassanio. Means Portia says to Bassanio to tarry. Tarry means wait. Wait करने के लिए. So why she is telling him to wait? Actually, Bassanio is very much excited to choose the casket. He has no patience not to wait any longer. But Portia is confused because she loves Bassanio and she thinks that if Bassanio will choose the wrong casket, then she will not be able to marry Bassanio, and it will be a very great setback for her. That's why she does not want to take any risk while Bassanio chooses the casket. That's why she says, Bassanio, you just wait. Tarry means wait. Pause. Wait for a moment. A day or two. She says to Bassanio to wait for a day or two. Why? Before you hazard. Hazard means to take risk. So before you take risk, what is risk here? To choose the casket. Before you choose the casket, you should take some time, either a day or a two. Yes, next she says here, in choosing wrong, I lose your company. She makes it clear here, if she chooses the wrong casket, then if he chooses the wrong casket, in that case, she will lose the company of Bassanio. Therefore, bear a while. Therefore, she says here that you must have some patience for some time. You wait for some time. For bear means patience. So you must just wait for some time. And there is something tells me. So in the above three lines, what we have seen here, Portia is requesting to Bassanio to wait for a day or two, because if he will choose the wrong casket, he will lose his company and this will be a great setback. That's why he must have some patience. Then she says, there is something tells me. There is something tells me. Means something is there, what is in her mind. There is something, what is in her mind? What is in her mind? But it is not love. But she makes it clear कि जो उसके दिमाग में चल रहा है वो प्यार नहीं है. मतलब मन ही मन पोर्सिया प्यार तो करती है बेसेनियो से, लेकिन वो बेसेनियो के सामने इस बात को जाहिर नहीं होने देना चाहती कि वो इससे प्यार करती है. इसीलिए कहती है कि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चल रहा है वो प्यार के कारण है या तुमसे प्यार है, ऐसी बात नहीं है. आई वुड नॉट लव यू, मैं तुमसे प्यार नहीं करती. एंड यू नो योर सेल्फ, हेट कॉन्सेल्स नॉट इन सच ए क्वालिटी. और तुम्हें भी अच्छी तरह मालूम है कि नफरत में ये बातें आ नहीं सकती. तो अगर कोई व्यक्ति किसी से प्यार नहीं करता और नफरत में ये बातें आ नहीं सकती, तो फिर प्यार और नफरत के बीच में ऐसी क्या चीज़ होती है? प्यार और नफरत के बीच में भी एक ऐसी चीज़ होती है जो पोर्सिया कहती है जो मेरे पास है. बट लेस्ट यू शुड नॉट अंडरस्टैंड मी वेल. लेस्ट यानी तब तक जब तक कि तुम मुझे अच्छी तरह समझ नहीं लेते. पोर्सिया कहती है कि तुमको तब तक इंतज़ार करना चाहिए जब तक कि तुम मुझे अच्छी तरह समझ नहीं लेते, तब तक तुम्हें इंतज़ार करना चाहिए. एंड येट ए मैडन हैथ नो टंग बट थॉट. ये लाइन का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? येट ए मैडन हैथ नो टंग बट थॉट. मतलब एक मैडन मतलब अनमैरिड लड़की, एक कुंवारी लड़की जितना दिमाग में सोचती है वो सब अपने टंग पर, जबान पर नहीं लाती. यानी एक लड़की के दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, लेकिन वो सारी बातें अपनी जबान पर, अपने मुंह से वो नहीं बोलती. तो इसका मतलब बहुत सारी बातें पोर्सिया के दिमाग में भी चल रही है, लेकिन वो अपने जबान पर नहीं लाना चाहती. पोर्सिया इसमें आगे बढ़ती है. एंड फर्दर शी सेज हियर, आई वुड डिटेन यू हेयर सम मंथ और टू बिफोर यू वेंचर फॉर मी. मेरी तो इच्छा थी कि तुमको 1 या 2 महीना हम यहाँ पर रोक लेते, जब तक तुम मेरे लिए कोई वेंचर यानी कोई रिस्क लेते. मेरे लिए अगर तुम ये रिस्क लेते तो इससे पहले मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हें यहाँ पर फॉर ए मंथ और टू, 1 या 2 महीना तुमको मैं रोक लेती. आई वुड टीच यू. और ऐसा क्या होता अगर मैं तुम्हें 1-2 महीना रोक लेती? तो पोर्सिया कहती है आई कुड टीच यू, मैं तुम्हें सिखा सकती थी, समझा सकती थी हाउ टू चूज राइट. मीन्स व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द राइट कास्केट.
सही कास्केट चूज करने का क्या तरीका है। बट व्हेन आई एम forsworn, लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर मैं तुमको 1-2 महीना रोककर तुमको राइट कास्केट चूज करने का तरीका समझाती हूँ, तो पोर्सिया कहती है इन दैट केस व्हाट विल हैपन, देन आई एम forsworn। forsworn का मतलब क्या होता है, forsworn का मतलब वायलेशन ऑफ द ओथ व्हाट सी हैज़ टेकन। तो उस ओथ का वायलेशन हो जाएगा, उसके फादर ने जो यहाँ पर कंडीशंस रखा है उसका क्या हो जाएगा, उसका वायलेशन हो जाएगा। सो उसके फादर का वो प्रॉमिस, उसके फादर का वो जो यानी शर्त है, कंडीशंस है, उसका ये वायलेशन हो जाएगा। सो विल नेवर बी, और ऐसा मैं कभी नहीं कर सकती। पोर्सिया कहती है मैं अपने फादर के ओथ का वायलेशन कभी कर नहीं सकती, इसीलिए मैं तुमको समझा नहीं सकती। सो मे यू मिस मी, तो फिर क्या होगा, तो मैं तुम्हें अगर समझा नहीं सकती कि सही कास्केट चूज करने का तरीका क्या है, सो इन दैट केस व्हाट मे हैपन, पोर्सिया सेज मे यू मिस मी, तुम मुझे मिस भी कर सकते हो। और अगर तुमने ऐसा किया, बट इफ़ यू डू, अगर तुम मुझे मिस करोगे तो क्या होगा, यू विल मेक मी विथ ए सिन, और अगर नहीं तो तुम मुझे अगर मजबूर करोगे ऐसा कहने के लिए, यानी बताने के लिए कि कौन सा कास्केट चूज करना सही होगा, तो क्या होगा, यू विल मेक मी विथ सिन। इसका मतलब तुम मुझको कोई पाप करने के लिए कहोगे। अगर मैं तुम्हें समझा देती हूँ कि कौन सा कास्केट चूज करना है, क्या तरीका है, तो मेरे लिए एक सिन होगा। सिन मतलब एक पाप होगा। दे हैव ओवरलुक्ड मी एंड डिवाइड, यस दैट आई हैड बीन forsworn, किस लिए पाप होगा, forsworn के लिए, मतलब वायलेशन ऑफ माई फादर्स ओथ के लिए ये क्या हो जाएगा, सिन हो जाएगा। नाउ पोर्सिया सेज हियर बिसरी योर आइज, शी इज गेटिंग इमोशनल, शी इज गेटिंग हियर मोस्ट रोमांटिक एंड शी सेज हियर बिसरी योर आइज, बिसरी मीन्स कर्स योर आइज, तुम्हारी आंखों को अभिशाप लगे। पोर्सिया यहाँ पर कोसती है बेसेनियो की आँखों को। बेसेनियो बहुत ही सुंदर है, बेसेनियो वेरी वेरी हैंडसम पर्सन, उसकी आंखें बहुत सुंदर है। तो पोर्सिया कहना क्या चाह रही है, पोर्सिया कहती है कि बिसरी योर आइज, कर्स योर आइज, यानी तुम्हारी आँखों को बिसरी यानी कर्स हो जाए, माने बद्दुआ लग जाए, क्योंकि तुम्हारी आँखों ने क्या किया है, तुम्हारी आंखों का गुनाह क्या है, तुम्हारी आंखों ने मेरे ऊपर जादू कर दिया है। दे हैव ओवरलुक्ड मी, ओवरलुक का मतलब होता है जादू कर देना। तुम्हारी आंखों ने मेरे ऊपर जादू कर दिया है, एंड डिवाइडेड मी, और मुझे बांट दिया है 2 पार्ट में। यानी तुम्हारी आंखों से मैं इतना ज़्यादा तुम्हारे ऊपर अट्रैक्टेड हो गई हूँ, तुम्हारी आंखों का जादू मेरे ऊपर इतना छा गया है कि ये मुझे 2 पार्ट में बांट दिया है। अब ये कौन कौन सा 2 पार्ट है, फिर ये कहती है पर 1/2 ऑफ मी इज़ योर्स, मेरे शरीर का यानी मेरा आधा तुम्हारा हो गया है। उन सुंदर आँखों के कारण मेरे शरीर का आधा तुम्हारा हो गया है, और दूसरा आधा जो मेरा है वो भी तुम्हारा हो गया है। तो आधा तो तुम्हारा हो ही गया, और जो आधा मेरा वाला हिस्सा है वो भी तुम्हारा हो गया है। एंड आई वुड से बट इफ माइन देन योर्स, जिसको जो मेरा आधा था वो भी अब क्या हो गया है, वो सभी तुम्हारा ही हो गया है। और ऐसे कंडीशन में, और अगर ऐसा होता है तो आधा और आधा मतलब पूरा ही, मतलब मेरे शरीर का पूरा ही अब किसका हो गया, तुम्हारा हो गया है। और दिस नॉटी टाइम्स, लेकिन ये समय कितना बुरा वक्त है कि मेरे शरीर का पूरा तुम्हारा हो गया, इसका मतलब मेरे शरीर पर पूरा अधिकार तुम्हारा हो गया। लेकिन पोर्सिया कहती है इट्स ए नॉटी टाइम, ये जो समय है वो बहुत ही नॉटी है, बुरा वक्त है। बुरा वक्त क्यों है, पुट बार्स बिटवीन द ओनर्स एंड देयर राइट, एक मालिक को उसके अधिकार से वंचित कर देता है। अगर मेरा शरीर तुम्हारा है तो तुम हमारे शरीर के मालिक हो गए, तो तुम्हारा मेरे ऊपर अधिकार हो गया, लेकिन हमारे शरीर और तुम्हारा मालिकाना हक मेरे शरीर पर के बीच में एक दीवार है, एक वाल है। क्या है वो वाल, वो वाल है यानी वो वाल क्या है, वो वाल है फादर का ओथ। वाल क्या है, कास्केट चूज करने का, यानी राइट कास्केट चूज करना, ये वाल है। तो इस वाल के कारण तुम जो चीज़ तुम्हारा है, फिर ये कहती है यहाँ पर एंड सो, और इस वाल के कारण क्या है, जो तुम्हारा है द योर्स नॉट योर्स, जो तुम्हारा है वो भी तुम्हारा नहीं है। ये इस ओथ के कारण है। लेट फॉर्चून गो टू हेल फॉर इट नॉट आई, लेकिन हाँ एक बात है, अगर तुमने भूल से कहीं रॉन्ग कास्केट को चूज कर लिया
In case of choosing the wrong casket, you will have to suffer, and in that case you can't blame me. Means I will not at all be responsible for your failure. तुम्हारा जो फेलियर होगा उसके लिए मेरी कोई जवाबदेही नहीं होगी। अगर तुम फेल करोगे तो उसकी जवाबदेही तुम्हारी है। लेकिन पोर्सिया अचानक ये कहते कहते रुक जाती है और कहती है, अरे आई स्पीक टू लॉन्ग, मैंने तुम्हारे साथ इतना बातचीत क्यों कर लिया। आई स्पीक टू लॉन्ग मीन्स आई हैव स्पोकन फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही लंबी बातचीत की है। बट इट्स टू पीस द टाइम, लेकिन इसका एक कारण है। तो पोर्सिया इसके पहले जो दो सीटर हमने देखा था, प्रिंस ऑफ मोरक्को एंड प्रिंस ऑफ एरोगन, उसके साथ इतनी बातचीत तो की नहीं थी। तो फिर इस कास्केट में इस सीटर के साथ इसका ऐसा क्या लगाव है जिससे उसने इतनी बात की है। ये कहती है कि तुम्हारे साथ जो मैं इतने बात किया हूँ इसका भी एक कारण है, और वो कहती है क्या कारण है। टू पीस द टाइम, टू पास द टाइम, टू स्पेंड द टाइम, समय पास करने के लिए, समय बिताने के लिए मैंने तुम्हारे साथ इतना बात किया है। क्योंकि टू एक इट एंड टू ड्रॉ इट आउट इन लेंथ, क्योंकि जितना मैं तुमको बात में उलझा कर रखूँगी उतना तुमको कास्केट के बारे में सोचने का और ज़्यादा वक्त मिल जाएगा। इसीलिए मैं तुमको बात में उलझा करके रख रही हूँ, तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही हूँ कि तुम कास्केट के बारे में, राइट कास्केट कौन सा होना चाहिए, इसके बारे में तुमको सही फैसला लेने के लिए तुम्हें वक्त मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर टू स्टे यू फ्रॉम इलेक्शन, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं तुमको इलेक्शन से दूर रखूँ। इलेक्शन मतलब कास्केट चूजिंग का जो ऑप्शन है, तो कास्केट चूज करने से मैं तुम्हें दूर रखूँ, तुम जल्दीबाजी में कोई फैसला न कर लो और यहाँ से हार कर बाकी सीटर्स की तरह तुम भी चले जाओ, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती। और इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि तुम यहाँ से सही तरीके से पेशेंस के साथ सोच समझकर फैसला लो। सो दिस वाज ए वेरी लॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ पोर्सिया। Now I am coming to the answer part of Bassanio. What is the reaction? What is the answer of Bassanio at this particular proposal of Portia to spend some time, to take some time and to choose a casket very patiently? Now I am coming to Bassanio's statement. Bassanio's statement is very short, only 2 lines. Bassanio says here, let me choose, for as I am, I live upon the rack. Bassanio says here, let me choose. अरे मुझे चूज कर दे तो जल्दी, मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है कि मैं वेट करूंगा, मुझे जल्दी से जल्दी कास्केट चूज करने दो। लेट मी चूज फॉर एल्स आई एम, क्योंकि मेरा कंडीशन क्या है। जितना देर मैंने कास्केट चूज नहीं किया है उतना देर बेसेनियो कहता है कि मेरा कंडीशन क्या है। आई लिव अपॉन द रैक, मीन्स आई एम अपॉन द रैक, मैं रैक पर हूँ। रैक क्या होता है? एक्चुअली रैक इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ टॉर्चर। टॉर्चर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है ये रैक, और आमतौर पर इसमें एक फ्रेम होता है जिन इज पीपल वेयर स्ट्रेंस्ड, और पीपल को इस पर रखा जाता है। और जैसे कोई क्रिमिनल को अगर कोई पुलिस थाना में पकड़ कर ले जाती है तो उससे वो सच उगलवाने के लिए इस रैक का यूज करती है। तो उस रैक पर जब कोई व्यक्ति होता है, जब कोई क्रिमिनल होता है और पुलिस उससे मार मार कर सच उगलवाती रहती है, तो जो क्रिमिनल का जो कंडीशन है वही कंडीशन बेसेनियो कहता है कि मेरा कंडीशन भी एक वैसा ही है, मैं भी इंटरनली अंदर ही अंदर वैसा ही टॉर्चर हो रहा हूँ जैसे कोई व्यक्ति क्रिमिनल व्यक्ति को किसी रैक पर रखकर टॉर्चर किया जाता है। सो ही सेज हियर आई लिव अपॉन द रैक। तो हमने देखा यहाँ पर रैक का क्या मतलब है। रैक का मतलब है एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ टॉर्चर, टॉर्चर करने का एक इंस्ट्रूमेंट। तो जैसे किसी को टॉर्चर किया जाता है रैक पर डालकर, उसी तरह मैं भी ये समझ रहा हूँ कि मुझे भी लगता है कि आई एम अपॉन द रैक एंड आई एम बीइंग टॉर्चर्ड। पोर्सिया कहते अच्छा ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो अपॉन द रैक, ओ यू बेसेनियो यू थिंक यू आर अपॉन द रैक, देन कॉन्फेस। तो रैक पर आदमी क्या करता है, एक मुजरिम क्या करता है, कॉन्फेस करता है, मतलब अपना जुर्म स्वीकार करता है। व्हाट ट्रेसॉन देयर इज मिंगल्ड विथ योर लव, अब तुम भी स्वीकार करो जो मैं तुमसे सवाल कर रही हूँ। पोर्सिया कहती है कि तुम स्वीकार करो कि तुम्हारे प्यार में क्या मिलावट है, तुम्हारे प्यार में कितनी धांधली है, कितनी मिलावट है, कितना तुम्हारा प्यार सच्चा है, कितना तुम्हारा प्यार झूठा है, जरा ये भी है तुम स्वीकार कर लो। बेसेनियो कहता है नन बट दैट अगली ट्रेसॉन ऑफ मिसट्रस्ट, बिल्कुल नहीं, मेरे प्यार में किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। मेरे प्यार में कहता है नन बट दैट अगली ट्रेसॉन ऑफ मिसट्रस्ट, लेकिन मेरे अंदर एक मिसट्रस्ट है, एक अविश्वास है, क्योंकि मैं
तुमसे शादी मेरी होगी, ऐसा मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। एक मिसट्रस्ट है, यानी अपने ऊपर भरोसा नहीं है, विच मेक्स मी फियर, जो मेरे अंदर एक डर पैदा कर देता है। मैं उससे डरा हुआ हूँ। फियर द एंजॉइंग ऑफ माई लव, कि मैं अपने प्यार को एंजॉय कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, इसका मुझे डर है। देयर मे बी एज वेल बी एमिटी इन लाइफ बिटवीन स्नो एंड फायर एज ट्रेसन एंड माई लव। जैसे कोई स्नो यानी बर्फ़ एंड फायर मतलब आग, तो स्नो एंड फायर की कभी दोस्ती नहीं हो सकती। जैसे एक साथ स्नो और फायर दोनों नहीं रह सकता, फायर के कांटेक्ट में आने पर ही स्नो क्या हो जाता है, मेल्ट होकर वाटर हो जाता है। तो जैसे स्नो और फायर की दोस्ती नहीं हो सकती, ठीक उसी तरह मेरे प्यार में किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है, तो मेरा प्यार भी एकदम सच्चा है, उसमें कोई ट्रेशन यानी कोई विश्वासघात बिल्कुल ही नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर पोर्सिया का जो कॉन्फेशन करने के लिए कहा गया था, उसने ये कह दिया कि मेरे प्यार में कोई मिलावट नहीं। पोर्सिया कहती है नहीं नहीं नहीं, बात ऐसी नहीं है, या बट आई फियर यू स्पीक अपॉन द रैक। मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे कोई मुजरिम मार के डर से अगर वो जुर्म नहीं भी किया हो तो भी अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि ठीक है मैं जुर्म कबूल कर लेता हूँ, मार से तो बच जाऊँगा। तो बेचैनियों, क्या तुम भी कहीं रैक पर होने की वजह से यानी टॉर्चर्ड होने की वजह से कहीं अपना ये प्यार में मिलावट न होने की बात कहीं कबूल तो नहीं कर रहे हो? वी आर मेन इन्फोर्स टू डू स्पीक एनीथिंग, क्योंकि रैक पर तो इंसान को इन्फोर्स किया जाता है, मतलब ज़बरदस्ती किया जाता है सच बोलने के लिए या फिर अपना जुर्म कबूल करने के लिए। और कभी कभी लोग बिना गलती किए भी अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं मैंने मार से बचने के लिए। तो कहीं तुम ऐसा तो नहीं कर रहे? तो बेसेनियो कहता है यहाँ पर प्रॉमिस मी लाइफ। प्रॉमिस मी लाइफ मीन्स प्रॉमिस माई लाइफ। आई एम प्रॉमिसिंग माई लाइफ। मैं अपने लाइफ की कसम खाकर कहता हूँ कि मेरे प्यार में कोई मिलावट नहीं है। एंड आई विल कॉन्फेस द ट्रूथ, और मैं ये सच कॉन्फेस करने के लिए तैयार हूँ, मैं ये कॉन्फेस करता हूँ। पोर्सिया कहते ठीक है, ठीक है, अगर बात ऐसी है तो वेल देन कॉन्फेस एंड लीव। तो फिर तुम कॉन्फेस करो एंड लीव, और तुम जिंदा रहो। अगर तुमने कॉन्फेस कर लिया तो तुम जिंदा रहो। और इस तरह से यहाँ पर कॉन्फेस एंड लीव, देन कॉन्फेस एंड लीव, तुम यहाँ पर कॉन्फेस करो और जिंदा रहो। की कहता है बेसो ने कहता है कॉन्फेस एंड लीव नहीं, कॉन्फेस एंड लव। कॉन्फेस एंड लव, प्यार। मैं कॉन्फेस करता हूँ अपने प्यार के बारे में। हैड बीन द वेरी सम ऑफ माई कॉन्फेशन, यही मेरा है, मेरा पूरा कॉन्फेशन का सार। सम ऑफ माई कॉन्फेशन मतलब पूरे कॉन्फेशन का जो जिस्ट है, जो थीम है, जो सम है, वह है प्यार। यानी मेरे पास सिर्फ प्यार और प्यार ही है। ऑफ हैप्पी टॉर्मेंट, क्या टॉर्चर है, हैप्पी टॉर्मेंट, क्या सुंदर टॉर्चर है। एक टॉर्चर करने वाला व्यक्ति खुद ही मुझे बता रहा है कि टॉर्चर से बचने का तरीका क्या है। When my torturer doth teach me answers for deliverance, टॉर्चर करने वाला व्यक्ति यानी टॉर्चरर, डॉथ मतलब डज का पोइटिक फॉर्म है डॉथ, टीच मी मतलब मुझे सिखा रहा है, आंसर्स फॉर डिलीवरेंस मीन्स द वेज फॉर सेविंग फ्रॉम द टॉर्चर। टॉर्चर से बचने का सही तरीका क्या है। तो क्या सुंदर टॉर्चर है जिसमें टॉर्चरर खुद ही बता रहा है कि इस टॉर्चर से बचने का तरीका क्या है। बट लेट मी टू माई फॉर्चून एंड द कास्केट, लेकिन अब मुझे पेशेंस नहीं है मेरे पास। बेसो ने कहता अब मेरे पास कोई पेशेंस नहीं है, अब मुझे कास्केट चूज़ करने का तो मौका दो और मैं कास्केट चूज़ करूँगा। और इसके कहने के साथ ही यहाँ पर तीनों कास्केट जिसको पर्दे से ढक दिया जाता है, जैसा हमने एक्ट 2 सीन 7 में भी देखा था, पर्दा से ढका हुआ था, तो यहाँ भी पर्दा से ढका हुआ है। और पोर्सिया के ऑर्डर पर एक्चुअली दैट वेरी कर्टन्स आर रिमूव्ड एंड नाउ ऑल द 3 caskets are visible here, as everybody knows, as all of you are well acquainted that there are 3 caskets here. First one is the gold casket, second one is the silver casket, and the third one is the lead casket. And in one of them Portia's picture lies. If Bassanio will be able to choose that casket in which there is the picture of Portia, then he will be able to marry her. This is the condition, and if he chooses the wrong casket, in that case he will have to remain unmarried throughout the life. तो ये तो चीज़ हम पहले बता चुके, सिर्फ रिकैप करने के लिए मैंने अभी तुम्हें यहाँ पर बताया है। तो अब तीनों कास्केट बेसेनियो के सामने है,
लेकिन अब इससे पहले कि बेसेनियो उस कास्केट को चूज़ करने के लिए आगे बढ़े, अभी मेरे पास और भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आने वाला है, एंड दैट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ पोर्सिया। पोर्सिया कुछ समझाना चाहती है, पोर्सिया कुछ कहना चाहती है, या ये कह लो कि पोर्सिया बेसेनियो को टाइम देना चाह रही है। और क्या कहती है, अब यहाँ पर परमिशन तो मिल गया कास्केट चूज़ करने का। पोर्सिया कहती है अवे देन आगे बढ़ो, अवे देन मतलब मूव फर्दर, आगे बढ़ो। इफ़ यू आर सो मच एक्साइटेड टू चूज द कास्केट यू मे प्रोसीड। एंड व्हाट शी सेज नाउ, आई एम अनलॉक्ड इन वन ऑफ देम, मीन्स आई एम लॉक्ड इन वन ऑफ देम। इन तीनों कास्केट में से एक कास्केट में मैं लॉक्ड हूँ। मैं लॉक्ड हूँ का मतलब तीनों में से किसी एक कास्केट मेरा पिक्चर है। इफ़ यू लव मी यू विल फाइंड मी आउट, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा होगा तो तुम जरूर उस कास्केट को चूज़ कर लोगे जिस कास्केट में मेरा पिक्चर है। नेरिसा एंड द रेस्ट स्टैंड ऑल अलोफ एंड हेयर शी इज इंस्ट्रक्टिंग टू ऑल हर सर्वेंट्स along with Nerissa to keep themselves aloof from casket choosing, means no hints will be provided to Bassanio regarding the choosing of casket, and Bassanio will choose the casket according to his own will and according to his own fate. Let music sound, सभी को हटा दिया गया। अब पोर्सिया कहते हैं लेट म्यूजिक साउंड, म्यूजिक प्ले करने का ऑर्डर देती है, म्यूजिक बजाया जाए। वाइल ही डॉथ मेक हिज चॉइस, यानी जितना देर में बेसेनियो कास्केट चूज करता है उतना देर म्यूजिक प्ले होते रहना चाहिए। म्यूजिक प्ले करने का ऑर्डर देती है। देन इफ़ ही लूज, और म्यूजिक का कारण क्या है अब वो समझा रही है। देन इफ़ ही लूज, अगर वो लूज कर जाता है, अगर वो गलत कास्केट चूज कर लेता है तो क्या होगा, ही मेक्स ए स्वान लाइक एंड, तो उसकी मौत कैसी होगी, एक स्वान की तरह होगी। स्वान के बारे में इतना बता देना जरूरी है कि द पीपल ऑफ एलिजाबेथन पीरियड बिलीव्ड दैट ए स्वान सिंग्स ओनली वंस जस्ट बिफोर इट डाइज। स्वान अपनी ज़िंदगी में एक ही बार गाना गाता है, और वो गाना जब कब गाती है वो स्वान, जब वो मरता है, मरने से पहले। तो अगर बेसेनियो ने भी कहीं रॉन्ग कास्केट चूज़ कर लिया तो उसकी जो मौत होगी वो स्वान लाइक होगी, यानी ये जो सॉन्ग होगा उसके लिए डेथ सॉन्ग यानी मौत से पहले का सॉन्ग साबित होगा। यस एंड फेडिंग इन म्यूजिक, और उसकी मौत इस म्यूजिक में दबकर रह जाएगी। दैट द कंपैरिजन मेस्ट एंड मोर प्रॉपर। पोर्सिया कहती है कि इसको और अच्छी तरह से अगर हम कंपेयर करें, इस बात को और अच्छी तरह से अगर कंपेयर करके बताया जाए तो क्या होगा, माई आई शैल बी द स्ट्रीम, मेरी आँखों को तुम ये समझ लो कि मेरी दोनों आँखें स्ट्रीम है, मतलब रिवर है। मेरी दोनों आँखें क्या है, रिवर है। एंड वाटरी डेथ वेट फॉर हिम, और मेरी आँखों में क्या है, किसका पिक्चर है, बेसेनियो का पिक्चर है। तो मेरी आँखों में बेसेनियो का पिक्चर है। तो यहाँ पर जिस तरह से कोई स्वान रिवर में या पॉन्ड में वो स्विमिंग करता रहता है, ठीक उसी तरह मेरी आंखों में भी बेसेनियो का पिक्चर है। और जैसे स्वान पानी में मर जाता है वैसे ही बेसेनियो जो मेरी आंखों में है उसकी मौत हो जाएगी। ही में विन, लेकिन हाँ वो जीत भी सकता है ना। वो ऐसा तो नहीं, ये भी हो सकता है कि वो राइट कास्केट चूज कर ले, और अगर वो राइट कास्केट चूज कर लेता है तो क्या होता है, एंड व्हाट इज़ म्यूजिक देन, तो उस वक्त कौन सा म्यूजिक बजाया जाएगा। अगर वो राइट कास्केट चूज करता है तो इन दैट कंडीशन व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक शुड बी प्लेड। देन म्यूजिक इज इवन एज द फ्लरिश व्हेन टू सब्जेक्ट्स बोट टू ए न्यू क्राउन्ड मोनार्क। जैसे कोई मोनार्क, जैसे कोई राजा नया नया राजा बनता है, यानी उसको क्राउंड किया जाता है, तो उसके क्राउंड होने के समय उनकी सारी प्रजाएं उनके सामने नतमस्तक होकर खड़ी रहती है। और जो म्यूजिक एक राजा के क्राउनिंग सेरेमनी में बजाया जाता है वही म्यूजिक बेसेनियो के कास्केट राइट कास्केट चूज करने पर बजाई जाएगी। सच इट इज एज आर दोज डल्स इट साउंड्स इट ब्रेक ऑफ डे। और ये म्यूजिक बेसेनियो की कानों को कैसा लगेगा, उतना ही प्यारा लगेगा जितना कि इन ब्रेक ऑफ डे दैट क्रिप्स इनटू द ड्रीमिंग ब्राइडग्रूम्स ईयर। जिस लड़की की शादी होती है, एक्चुअली इंग्लैंड में एक कस्टम है, और वो कस्टम क्या है वहाँ पर कि द म्यूजिक is played. This is an old English custom of playing music under the windows of the bridegroom's bedroom on the morning of his marriage.
यानी जब किसी लड़के की आज शादी होगी तो आज सुबह में उसके विंडो के पास एक म्यूजिक बजाई जाती है। वो म्यूजिक उसके कानों को बड़ा सुंदर लगता है। तो जैसे वो म्यूजिक उसकी कानों को सुंदर लगता है, बेसेनियों को आज वो म्यूजिक उतनी ही सुंदर लगेगी, उतना ही प्यारा लगेगा। नाउ ही गोज, अब देखो, नाउ बेसेनियो मूव्स, बहुत ही स्टेज ड्रामा है। कहता है यहाँ पर नाउ ही मूव्स, ही इज रेफर टू बेसेनियो है। नाउ ही मूव्स मतलब नाउ बेसेनियो मूव्स टुवर्ड्स द कास्केट फॉर चूजिंग इट। क्या कहता है यहाँ पर, विथ नो लेस प्रेजेंस। अब इसके बाद जो लाइन आ रहा है वो लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, और रेफरेंसेस का मैं समझाऊंगा क्योंकि इसका जो रेफरेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए लाइन्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कहता है यहाँ पर नाउ ही गोज। अब देखो, अब बेसेनियो आगे बढ़ रहा है। विथ नो लेस प्रेजेंस बट विथ मच मोर लव देन यंग एल्सिडस। इसके चलने का स्टाइल देखो, इसके चलने का स्टाइल यंग एल्सिडस से बिल्कुल भी कम नहीं है। एल्सिडस क्या होता है, एल्सिडस यहाँ पर रेफर्ड किया हुआ है हरक्यूलस को। हरक्यूलस कौन था, ही वॉज सन ऑफ एल्कियस। एंड उसके बारे में पहले हम कहानी समझा देते हैं इसका, उसके बाद ये लाइन समझने में बहुत आसानी होगी। एक्चुअली हरक्यूलस वॉज द सन ऑफ एल्क्वेस एंड ही हैड रेस्क्यूड हेसोइन। हेसोइन कौन थी, अनमैरिड डॉटर ऑफ द ट्रोजन किंग फ्रॉम ए सी मॉन्स्टर। यानी एक बार एक सी मॉन्स्टर ने, एक राक्षस ने, समुद्री राक्षस ने ट्रॉय पर अटैक कर दिया और ट्रॉय के राजा को जीत लिया। जीत लेने के बाद उसके बहुत सारे सैनिकों को बंदी बना लिया, अपने अधीन कर लिया उस राक्षस ने। लेकिन जीत लेने के बाद उसने एक शर्त रखा और उसका शर्त ये था कि यदि ट्रॉय का राजा अपनी बेटी जिसका नाम हेसोइन है उसको अगर वो उसके हवाले कर देता है तो उसके बाकी सैनिकों को छोड़ देगा। यानी हजारों सैनिकों के बदले अगर एक लड़की जो राजा की खुद की लड़की थी अगर वो दे देता है, उसे उसकी बलि दे देती है, पहले के ज़माने में नर बलि का सिस्टम था, तो अगर वो उसकी बलि उस राक्षस के सामने दे देता है तो ऐसे कंडीशन में बाकी सैनिकों को वो छोड़ देगा। तो उसको बचाने के लिए, उस लड़की को बचाने के लिए, हेसोइन को बचाने के लिए कौन आया था, आया था हरक्यूलस। तो जैसे उस लड़की को बचाने के लिए हरक्यूलस आया था, आज इस लड़की को यानी पोर्सिया को बचाने के लिए ये हरक्यूलस कौन, बेसेनियो बढ़ रहा है। तो वो हरक्यूलस के चलने का स्टाइल जो हेसोइन को बचाने के लिए जा रहा था और आज बेसेनियो जो यहाँ पर कास्कर चूजिंग करने के लिए जा रहा है, दोनों के चलने का स्टाइल एक ही है। So when he did redeem the virgin tribute paid by hauling Troy, virgin tribute मतलब अनमैरिड लड़की का ट्रिब्यूट यानी उसकी कुर्बानी, उसकी बलि देना, तो paid by hauling Troy to the sea monster। उस सी मॉन्स्टर के सामने जब उस लड़की की बलि होने वाली थी, सो इनकी उस वक्त जो बचाने के लिए वो जा रहा था उससे कंपेयर किया हुआ है। कहता है यहाँ पर पोर्सिया कहती है आई स्टैंड फॉर सेक्रीफाइस, यहाँ पर मेरी कुर्बानी होने वाली है, यहाँ पर मेरी बलि होने वाली है। द रेस्ट अलूफ आर द डार्डेनियन वाइफ्स। और बाकी जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये बाकी जितने लोग दर्शक हैं यहाँ पर इस कास्कर चूइंग सेरेमनी को देखने के लिए आए हैं, दे आर द डार्डेनियन वाइफ्स। मीन्स दे आर द डार्डेनियन वाइफ्स मीन्स दे आर द वाइफ्स ऑफ दैट प्लेस। तो वहाँ पर दे आर द वाइफ्स ऑफ द ट्रोजन वाइफ्स। तो वो ट्रोजन वाइफ्स जितनी लोग वहाँ पर सीन को देखने के लिए गई थी उस वक्त में जब हेसोइन की सेक्रीफाइस हो रही थी, और आज यहाँ पर जितने लोग हैं उसको यहाँ से कंपेयर कर देंगे ट्रोजन वाइफ्स के साथ। अब कहती है यहाँ पर कि द रेस्ट अलूफ आर द डार्डेनियन वाइफ्स विथ ब्लेयर्ड विसेज। ब्लेयर्ड विसेज का मतलब क्या होता है, टीयर स्टेंड फेसेज, मतलब आँखों में आंसू भरा हुआ। तो जैसे वो लेडीज हेसोइन वाले सीन के सामने अपने अपने आँखों में आंसू भरकर रो रही थी कि किस तरह से इसकी बलि हो रही है, ठीक इसी तरह यहाँ पर से कंपेयर कर दिया यहाँ पर किसको, कम फॉर टू व्यू द इशू ऑफ द एक्सप्लॉइट। तो वैसे ही आज के ये लोग भी अपनी आंखों में आंसू डालकर इंतज़ार करते हैं कि बेसेनियो कौन सा कास्कर चूज़ करेगा। इसलिए वो कहती है गो हरक्यूलस गो, और मेरे हरक्यूलस आगे बढ़ो, लीव दाओ आई लीव, अगर तुम जिंदा रहे तो मैं भी जिंदा रहूँगी, विथ मच मोर डिसमे, और इसमें ज़्यादा, लेकिन अगर तुम जिंदा रहे तो मैं भी जिंदा रहूँगी। लेकिन ये यहाँ पर जो कंडीशन है, पोर्सिया कहती है यहाँ पर, अच्छी लाइन है यहाँ पर, मच मोर डिसमे। डिसमे का मतलब होता है कन्फ्यूजन। तो मेरे अंदर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। आई व्यू द फाइट देन दाउ दैट मेकेस द फ्रे।
तो आज यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो व्यक्ति खुद कंपटीशन में भाग ले रहा है उससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ मैं इस कंपटीशन को वॉच कर रही हूँ। पोर्सिया ये कहना चाहती है कि तुम तो खासकर चूज करने के लिए जा रहे हो, लेकिन तुमसे ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा है। मुझे इसके अच्छे और बुरे होने यानी तुम्हारे फेल और तुम्हारे पास होने पर मुझे यानी ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है। अब यहाँ पर उसने कह दिया, अपना बात क्लियर कर दी। नाउ द म्यूजिक इज प्लेड एज इट वाज इंस्ट्रक्टेड बाय पोर्सिया। नाउ वी आर कमिंग टू द म्यूजिक। व्हाट म्यूजिक इज देयर? म्यूजिक इज टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड और इन द हार्ट और इन द हेड। इस दो लाइन के बाद एक क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। टेल मी वेयर इट फैंसी ब्रेड। फैंसी ब्रेड का मतलब यहाँ पर क्या है? फैंसी ब्रेड का मतलब है यहाँ पर कि प्यार का जन्म। तो ये फैंसी यानी प्यार का जन्म कहाँ होता है? इस गाने में बोल रहा है कि प्यार का जन्म कहाँ होता है, दिल में या दिमाग में। प्यार कहाँ से उठता है, दिल से उठता है या दिमाग से उठता है? हाउ बिगॉड, और साथ में ये कैसे इसका जन्म होता है? हाउ नरिश्ड, कैसे इसकी परवरिश होती है? रिप्लाई, जवाब दो मुझे। इस गाने में ये लिखा हुआ है। अब कहता है इट इज़, अब इसका जवाब है यहाँ पर क्या कहता है? इट इज़ इंजेंडर्ड इन द आइज़। प्यार का जन्म न तो दिल में होता है न ही दिमाग में, प्यार का जन्म तो आँखों में होता है। विद गेजिंग फेड एंड फैंसी डाइज, जब लोग आंखें फार फार कर किसी चीज़ को देखते हैं तो एक तरह से वो प्यार का प्रतीक है। एंड फैंसी डाइज इन द क्रेडल वेयर इट लाइज, लेकिन सारे के सारे प्यार जो वो आँखों में जन्म लेता है वो अंजाम तक नहीं पहुंचता। बहुत कम ही प्यार अंजाम तक पहुंचता है, बहुत कम ही प्यार जो है वो मैरिज में कन्वर्ट हो पाता है। नहीं तो ज़्यादातर जो प्यार होता है क्या होता है? इन द क्रेडल। क्रेडल मतलब होता है पलना, जहाँ बच्चे को झुलाया जाता है। तो ये आँख भी क्या है? पलना है। वहाँ पर उस प्यार की मौत हो जाती है। एंड लेट अस ऑल रिंग फैंसीज नेल, और ऐसे कंडीशन में उस प्यार के मौत के लिए हमें नेल बजाना चाहिए। यानी नेल का मतलब डेथ बेल बजाना चाहिए। आई विल बिगिन, मैं यहाँ पर शुरुआत करती हूँ डेथ बेल बजाने का। डिंग डोंग बेल, और वहाँ पर डिंग डोंग बेल बजाया जाता है, यानी ये सॉन्ग में बजाया जाता है और सभी यहाँ पर डिंग डोंग बेल बजाते हैं। और इस तरह से पोर्सिया यहाँ पर वेसेनियों को पूरी तरह से खासकर के बारे में समझा दिया और उसे अलाउ कर दिया है खासकर चूज़ करने के लिए। हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम अपने वीडियो के इस सीन के एक्ट 3 सीन 2 के सेकेंड पार्ट में अब तुम्हें समझाएंगे कि बेसेनियो किस तरह खासकर चूज़ करता है, कौन से आधार पर चूज़ करता है, कौन सा खासकर चूज़ करता है। इस सब के लिए तुम्हें हमारे नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।